हेलो स्टूडेंट्स हुण आपां करन जा रहे हैं लैक्चर 7 ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ क्वेश्चन करांगे NCERT दी एक्सरसाइज 5.8 दे। ਤਾਂ पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ f is closed interval -5 to 5 to capital R real numbers is a differentiable function, and if f dash x does not vanish anywhere, then prove that f of -5 is not equal to f of 5। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਰੂਲਸ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਸ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -5 to 5, ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -5 to 5। ਉਹ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ LMV ਥਿਊਰਮ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ at least one C belonging to open interval -5 to 5 such that f dash C यही ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। f dash C ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ f of 5 minus f of -5 by 5 minus -5। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ f dash x does not vanish anywhere, ਮਤਲਬ f dash x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਭਰੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ C ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ 1 2, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਤਾ ਕਿ f dash C ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਿਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ f dash C ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ f dash C ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ f dash C ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ 10 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਆਫ f-5 ਹੈ ਇਹ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4। ਵੈਰੀਫਾਈ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਊਰਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਊਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟਾਈਟਲ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਊਰਮਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਰੋਲਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਊਰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਸ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਥਰਸ, ਅਤੇ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਊਰਮ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ। ਰੋਲਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੋਲਸ ਲਿਖੂਗਾ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਊਰਮ, ਮਤਲਬ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਸ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਤਾ, ਇੰਟਰਵਲ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਆਈ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ all the conditions of LMV are satisfied, therefore there exists at least one C belonging to open interval to 4 such that, ਜਿਹੜੀ ਕਿ LMV ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ f dash C, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। f of 4 ਆ ਗਿਆ -f of 1/4 -1, ਜਿਹੜਾ A ਅਤੇ B ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢ ਲਈਏ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ x ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 2x ਅਤੇ -4x ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ -4। ਤਾਂ ਇਹ f dash x ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ f dash C 'ਚ C ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਭਰਤਾ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ
2c माइनस 4 ये होगी लैफ्ट हैंड साइड। F4 का मतलब की है फंक्शन च 4 भरो, ये आ जाएगी कैलकुलेशन। F1 का मतलब ये 1 भरो, कैलकुलेशन ये आ जाएगी। ये सारा कैलकुलेशन वर्क है, ये कुछ समझने वाला नहीं, कि तुम कर सकते हो, देख के नोट कर सकते हो। तो ये आ गया जी कैलकुलेशन करके C की वैल्यू 5/2। C की वैल्यू की है, देखो ओपन इंटरवल च लाई कर रही है। यही अपन उन्हें क्या सीगा लगरांजस ने कि ओपन इंटरवल च वैल्यू घट्टो घट्ट एक जरूर आऊगी सी दी। तो इतों आप कह सकते हैं कि LMB है जी वो वेरीफाई हो चुकी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज सेम है अपनी। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ f of x इज दिस। इंटरवल देता हुआ है। मीन वैल्यू थ्योरम मतलब LMB लगरांजस मीन वैल्यू थ्योरम। उस तो बाद उन्हें एक होर पार्ट किया, फाइंड ऑल C बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 1 to 3 फॉर विच f' इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो हुण आपां इहनूं समझांगे। कई बार इस पार्ट तो बच्चे घबरा जाते हैं भी पता नहीं है की लिखता, उपर तो LMB की गल कर रहे, ये पता नहीं की है। तो हुण देखते हैं आप एक बार आराम नाल। तो पहला फंक्शन लिखिया जी, पॉलीनोमीयल है। पॉलीनोमीयल एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होंदा है, इस करके क्लोज्ड इंटरवल च भी कॉन्टीन्यूस होएगा तो ओपन इंटरवल च डिफरेंशिएबल भी होएगा। तो ये सेम वर्डिंग आ गई लगरांजेस की कि घट्टो घट्ट एक C जरूर मिलेगा इस फॉर्मूले तो। ठीक है जी। f' कढ़न लिए आपको f' पहला कढ़ना पेगा। तो आप f' देख लो, ये बन गया x³ का 3x² बन गया, -5x² का डेरीवेटिव किया, यदा डेरीवेटिव चल रहा है तो कि हो गया -10x तो -3 बन गया। ये सारे बच्चे आता ही है डेरीवेटिव का। तो f' का मतलब उत्थे डेरीवेटिव के जोड़ा मैं इतने दिखाया से तुहानूं ये वैल्यू भर ली। इस तो बाद फंक्शन च 3 भर के ये कैलकुलेशन वर्क है। फंक्शन च 1 भर लिया मतलब ये भर रहे हैं, ये आ गया थले माइनस हो गई। तो ये दिस इज़ ऑल कैलकुलेशन वर्क। तो अपन वी नीड नॉट टू डिस्कस द कैलकुलेशन वर्क, तुम देख लो समझ आ जाएगी कैलकुलेशन चो। ओके, इस तो बाद इतने पहुँच गया आप ये फैक्टर्स बना ले। फैक्टर्स तो 2 वैल्यूज़ आ गई C दियाँ 1 तो 7/3, बट अपन कि चाहिए जी ओपन इंटरवल च होवे। तो ओपन इंटरवल च 1 तो लाई नहीं करता गा, तो इनू कर देंगे रिजैक्ट, इनू कर लाँगे आप एक्सैप्ट। तो इतों आ गया जी लगरांजस मीन वैल्यू है वेरीफाई हो गई है, क्योंकि एक वैल्यू अपन मिल चुकी है। ठीक है जी। हुण आप देखते हैं नैक्सट पार्ट, जो मैं क्या बच्चों को लगता है कि पता नहीं की पुछ लिया। सो ये तो डरना नहीं, ये इट्स वेरी सिंपल। इनू जोड़ा ये वाला पार्ट है इनू उपर वाले ना लिंक नहीं करना, आप ये अलग चीज़ पूछी है उन्हें। ठीक है, तो इनू देखते हैं हुण की है। वो उन्हें सिर्फ सिंपल जिहा क्या है, कहता C लभ के दे दो ओपन इंटरवल कदों, जो f' जीरो के बराबर है। तो आप करना की है, f' जीरो के बराबर लिख के C कढ़नी है, सिंपल। तो आ देखो f' मतलब f' आप कढ़िया सी ना, ये C भरी तो यह बन गया 3c² -10c - 3। इनू जीरो के बराबर लिखता क्योंकि उन्हें क्या हुआ अपन। उदों बाद C आप सॉल्व कर रहे हैं तो इतने आना सीगा 34। ये तुम देख सकते हो, ये आप फॉर्मूला लगा के किया हुआ क्वाड्रेटिक का जोड़ा फॉर्मूला है। ये सारा कैलकुलेशन वर्क है, इनू कर लेना तुम आपे। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगावे आप, मेन गल तो आवेंगे। C ये बन गया जी। हुण ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो रहा, बट बच्चों को की करना पेगा, रफ वर्क च इन्हां दियां वैल्यूज़ कढ़नियां पैणगियां √34 दियां। फिर एक बार प्लस लगा के तो 3 नाल डिवाइड करके देखोगे तो वो ये नहीं आऊगा। फिर तुम 5 दे नाल माइनस लगा के तो √34 की जिहड़ी भी डेसीमल वाली वैल्यू है कैलकुलेशन करके जो 3 नाल डिवाइड करोगे फिर भी ये नहीं आऊगा। तो यदा मतलब असीं कह सकते हैं सानू कोई C लभ्या ही नहीं। आ देखो, देर इज़ नो वैल्यू ऑफ C बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 1 to 3 सच वेयर f' इज़ 0। मतलब C सानू नहीं लभ रहा जो असी f' नू 0 के बराबर किया। हुण देखते हैं आप 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन च आपां क्या उन्हें, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल द 3 फंक्शंस गिवन इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 आप किया हुआ बहुत डिटेल दे विच, क्योंकि वो रोल्स के नाल उन्हें करन नूं कहा सीगा। तो पहला तो मैं सारे बच्चों को यही कहना चाहना कि इस क्वेश्चन को करन तो पहला आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखो जिहदे च क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया है रोल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो तुहानूं ग्राफिकली पता लग जाएगा जिहड़ियां कि मैं इस लैक्चर च गल्लां नहीं लिखियां गईयां। वो बहुत डिटेल च किया भी है ये सारा कुछ, तो उत्थों देखना तुसीं। ठीक है, हुण एक बारी आपां बिकॉज आपां रिवाइज नहीं करांगे उन्होंने,
सिर्फ एक वारी जनरल ही लिखांगे, बट उत्थों वीडियोज़ एक बारी तुसीं देखनी है। हाँ जी, तो पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 to 9। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਟੀਜਰਸ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟੀਜਰਸ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈ the conditions of LMB, therefore LMB is not applicable। क्योंकि कंडीशन तो एक ही ब्रेक हो जाए तो आप नाल दी नाल कह सकते हैं कि LMB अप्लाई नहीं हो सकती, इत्थे तो दोनों ही हो गई। ओके, सैकेंड क्वेश्चन भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला है, तो ये सारियां सेम गल्लां लिखोगे तो वीडियो देख लोगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तुसीं उहदे च समझ सकते हो कि आप ग्राफिकली की किया हुआ है, तो इनू आप ये अकॉर्डिंग ही डील कर लाँगे। थर्ड पार्ट देखिए जी, हुण आप डिफरेंट है इन्हां नालों है कि है पॉलीनोमियल फंक्शन जिहड़ा कि एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस ते डिफरेंशिएबल है। चलो एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल है तो फिर इनू कॉन्टीन्यूस होने तो क्लोज इंटरवल 1 to 2 तो कोई नहीं रोक सकता, इनू डिफरेंशिएबल होने तो भी कोई नहीं रोक सकता ओपन इंटरवल, क्योंकि एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस ते डिफरेंशिएबल है। उस तो बाद क्योंकि सारिया कंडीशन सारिया मतलब दो कंडीशन LMB दियां सैटिस्फाई हो गई, तो यदा मतलब एक सी तो लभूगा ही लभूगा किस तो इस फॉर्मूले तो जोड़ा LMB ने अपन दिता हुआ है। तो आप देख सकते हैं एफ डैश सी लिए की करना पेगा, एफ डैश एक्स करना पेगा, वो कितना आ गया डेरीवेटिव करके इहदा वो आ गया 2x। तो ये सी भरिया लैफ्ट हैंड साइड पर है ना, एफ डैश सी मतलब इत्थे, तो यह हो गया 2c। राइट हैंड साइड का मतलब एफ दे विच 2 भरो, कैलकुलेशन करो, एफ दे विच 1 भरो, ये कैलकुलेशन करो। इत्थे ये कैलकुलेशन करते करते आप पहुँच गए सी आ गया 3/2, जोड़ा कि ओपन इंटरवल के विच हैगा, क्योंकि 3/2 कितना होंदा 1.5। हाँ, एक वैल्यू अपन लभ गई जोड़ा कि LMB ने क्या सी, सो आप कह सकते हैं कि LMB है जी वेरीफाई हो गई। ओके, नाउ हुण आप क्वेश्चन देखते हैं, वट इज सैड अबाउट थर्ड कंडीशन इन रोल्स थ्योरम ज्योमैट्रिकली। रोल्स ने ज्योमैट्रिकली की क्या है, जी थर्ड कंडीशन आप किवें एक्सप्लेन करांगे उन्होंने, कि उन्होंने किद्दां दियां कर्व्स चाहिए, तो लगरांजिस बारे दसना है कि लगरांजिस ने वो थर्ड कंडीशन नहीं लिखी गई आपदे आप च, कंडीशन इनवॉल्व नहीं की वो, ठीक है। तो यदा मतलब ज्योमैट्रिकली जड़ियाँ लगरांजिस नूं किद्दां दियां कर्व्स चाहिए, जिन्ना भी तुसीं एक्सप्लेन कर सकते हो कमेंट बॉक्स लिखोगे, मैं उन्होंने चैक करूँगा, ठीक है, रिप्लाई बैक करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।